रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, थैंक यू। अच्छा, चलो मैं देख लो, मेरा शक्ल देखो तुम लोग, हम ही हैं। ओके फाइन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। जब भी देख रहे हो, डजंट मैटर वट एवर टाइम यू आर वॉचिंग इट, बट द ओनली थिंग इज दैट डू वॉच इट, and most importantly, make your own notes as you watch the video or after the video, anytime you make, but just make it. Fine, formalities are over, let's get started. Okay, what we will be discussing today is we'll continue with our course on current electricity. This is your fifth episode. Fine, and today we have to discuss these four topics. We'll try to finish off these things. First is Ohm's law. We'll just recall what was Ohm's law. Then we'll discuss on slope, and then we'll discuss about ohmic and non-ohmic resistors. Fine. Okay, fine, let's start. Okay, now again we come over here. So before that, let me just shut down the video. Yes, now it's fine, perfectly fine. Let's start. Now see, this we have done it time and time again, but we'll do it once again. This is the last time we are doing it. Fine. Okay, when we talk about current, what is the notation? As I say, you please repeat after me. Notation is I. Unit is ampere. AMPERE, symbol capital A. And obviously when we are talking about the unit, we are always referring to the SI unit. Okay, when we talk about potential, the notation is capital V and the unit is volt and the symbol is capital V. Fine. When we talk about resistance, the symbol is capital R, or unit is ohm, and the symbol is quite fancy one. Okay, perfect. But when we talk about conductance, see, conductance is defined as the reciprocal of resistance. रेसिप्रोकल का रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को कहा गया है कंडक्टेंस। और सिंस रेसिप्रोकल है, इसका यूनिट हो जाएगा 1/ओम, मींस ओम इनवर्स, या फिर सिंपली ओम इनवर्स, ऐसे लिख दो। फाइन। ओके, ये एक्चुअली ये तीन मेन कैरेक्टर्स है। अगर आपको रेजिस्टेंस पता है, दैट मींस इन अदर वर्ड्स you have the conductance. These three are the main characters of the movie. Fine. Now we have discussed Ohm's law. What was Ohm's law? These are the three characters of the movie: I, V, R, and there exists a relationship between. इन तीनों किरदार के बीच में एक relation है. That what is the relation? That is the potential difference across the resistor. Potential difference across the resistor is equals to resistance times the current flowing through it, or V is equals to IR, or V is equals to IR. V is equals to IR. That means if we have a conductor over here whose resistance is R, and if a current I is flowing through this resistor, then the potential difference across the end, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है, then the potential difference मतलब क्या बोल सकते हो, VA माइनस VB इज इक्वल टू रेजिस्टेंस करंट टाइम्स द रेजिस्ट, अरे यार एक सेकंड, सॉरी, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है रेजिस्टेंस टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग V बोल रहे हैं, तो V इज इक्वल्स टू RI, रेजिस्टेंस टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये तरीका है आपको याद रखने का। फाइन। V is equals to IR, and the moment V is equals to IR, यहां से आप बोल सकते हो V is equals to IR, or you can also say that IR is equals to V। तो आप I निकाल सकते हो, I हो जाएगा V by R, यहां से I निकल जाएगा, या फिर I can also say R is equals to V by I। R is V by I, R is V by I, R is V by I, and finally can I say, and सुन लो बस ये चीज, and conductance
which is reciprocal of resistance. सुन लो, बात सुन लो पहले शांति से. Conductance which is reciprocal of resistance. So can I not say that the conductance will become, resistance is V by I, this will become I by V. बात चमका कि नहीं चमका देखो. That means conductance is actually equal to I by V. I by V is conductance, V by I is resistance. ये बात समझ में आया? मतलब ये चीज आप बहुत, आपके पास एक, यू हैव वन इक्वेशन एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन प्ले गेम्स अराउंड. कुछ भी मैनिपुलेट करके किसी को भी कुछ भी सब्जेक्ट बना के कुछ भी कर सकते हैं हम लोग. फाइन, इज इट क्लियर? दिस इज द ओनली थिंग इंपॉर्टेंट. फाइन, लेट्स मूव फर्दर. दिस वाज अ क्वेश्चन गिवन टू यू ऑल एज अ होमवर्क. आई होप यू मस्ट हैव डन इट. क्या बोला है क्वेश्चन में? अ सिस्टम ड्रॉज अ करंट ऑफ 40 मिली एम्पियर. करंट कितना ड्रॉ कर रहा है? 40 मिली एम्पियर. 40 मिली एम्पियर मीन, सॉरी 400 है, 400. That means 400 into 10 to the power minus 3 ampere. Fine? Fine. When connected to a battery of 12 volt, potential difference कितना है? 12 volt. आपको करंट पता है, वोल्टेज पता है, you can easily find the resistance of the music system. क्या कर लोगे? हम लोग को पता है from Ohm's law, from Ohm's law V is equals to IR. बट आपको R निकालना है तो उसको उल्टा कर दो तो IR हो जाएगा V. So in other words R हो जाएगा, R हो जाएगा V by I. So see, if you want you can do directly formula use कर लो, R is V by I, पर systematic order में काम करते हैं. 12 by 400 into 10 to the power minus 3. ठीक है, अब ये minus 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 12 into 10 to the power 3 मतलब 1000 by 400. ये 2 0 इसका कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इसका कैंसिल 3, तो आंसर हो जाएगा 30. और यूनिट क्या होगा? ओम. 30 ओम. ये हो गया आंसर, 30 ओम. समझ में आया? इजी इजी. ज्यादा हो गया क्या? नीचे कैलकुलेशन नहीं दिख रहा है. अच्छा कुछ, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन नहीं दिख रहा पर कैलकुलेशन कर लोगे आप लोग, सिंपल सा कैलकुलेशन है. ठीक है. और उसके बाद बोला है the music system is left playing for several hours and finally the battery voltage drops and the music system stops playing when current drops to, when current drops to 320 ampere milliampere. अच्छा, when current becomes 320 milliampere मतलब 320 into 10 to the power minus 3 ampere. उस केस में पूछा है कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा. when the current is this much what will be the potential drop. तो देखो रेजिस्टेंस ऑफ द म्यूजिक सिस्टम हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हाउ मच? 30 ओम. देन अगेन वी हैव द सेम रिलेशन, पर यहाँ पे V निकालना है. तो फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो, ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल्स टू आई आर. तो I पता है कितना? 320 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 30. तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोज कितना है? बाप रे बाप. अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है, तो ये 2 0 हो जाएगा. 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 3 इज 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. तो माइनस 3 है तो डेसिमल पे शिफ्ट कर दो तो 9.6 वोल्ट आंसर. सिंपल सा कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है. ठीक है, इसे और डिस्कस नहीं करेंगे, बात खत्म, आगे बढ़ो. यहाँ पे एक सोल्यूशन दिया हुआ है इसका, आपका, आपको ये भेज भी चुके हैं, आपने हो सकता कर चुका होगा. थैंक यू सो मच. ओके, अब आते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है स्लोप. व्हाट डू मीन बाय स्लोप? अगर आप ध्यान से रिकॉल करो, स्लोप इज एक्चुअली द टर्म विच यू ऑल हैव ऑलरेडी स्टडीड इन मैथ्स. इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में. नाउ सी, इफ यू हैव अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अगर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए y अगेंस्ट x, both y and x are, both y and x are variables such that the graph
of this x and y happens to be a straight line like this. Fine. कैसा है? Straight line है. Straight line. Okay. Now, for straight line, or even if the graph happens to be a, अच्छा एक सेकंड इसको हटा देते हैं, इस पे नहीं जाएंगे हम अभी. अब ये जो स्ट्रेट लाइन है आपके पास, with this straight line a parameter is associated. Each straight line has its own slope. Each straight line has its own slope. Its own, हर एक स्ट्रेट लाइन के साथ एक उसका खुद का स्लोप एसोसिएटेड होता है. स्लोप को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं. फाइन. स्लोप मतलब एक्चुअली होता क्या है? व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय द वर्ड स्लोप? स्लोप एक्चुअली मीन्स द इंक्लिनेशन. इंक्लिनेशन, कितना वो स्ट्रेट लाइन कितना इंक्लाइंड है. जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है. So let this be line 2 and let this be line 1. अगर आप देखो तो जो सेकेंड लाइन है वो ज्यादा इंक्लाइंड है. क्यों? क्योंकि ये एंगल अगर आप मेजर करते हो तो ये एंगल अगर हम इसको थीटा 2 बोलते हैं तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल को हम थीटा 1 बोल रहे हैं. तो जो लाइन ज्यादा इंक्लाइंड है उसका स्लोप भी ज्यादा होता है. क्या बोल रहे हैं हम? सुन लो पहले एक बार. मोर द इंक्लिनेशन, मोर इज द स्लोप. मोर द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब एंगल. मोर द एंगल, मोर इज द स्लोप. मोर इज द स्लोप. जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ज्यादा स्लोप होगा. अगर आप रिकॉल करो एक्चुअली में तो स्लोप m का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो होता है tan थीटा. एंड एंगल जितना ज्यादा होगा tan थीटा उतना ज्यादा होगा तो स्लोप उतना ज्यादा होगा. tan थीटा का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस. यहाँ पे अगर यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पर एक दो यार इसको मिटा दो. यहाँ पे देख लो क्या कर दे रहा हूँ. यहाँ पे समझा अच्छे से यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं आपको. ये मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेट ग्राफ है. ये हो गया x, ये हो गया y, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल थीटा है. उस केस में अगर हम कोई भी आर्बिट्ररी दो पॉइंट कंसिडर करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन सकता है. तो ये सॉरी यहाँ थोड़ा थोड़ा सबर करो भैया, सबर करो. थिंग्स टेक्स टाइम समझाने में. ये हो गया स्ट्रेट लाइन, ये एंगल थीटा. अगर हम यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगल अज्यूम कर लें, ये एक ट्रायंगल अज्यूम कर लें हम इस हिसाब से, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस. तो परपेंडिकुलर क्या है एक्चुअली में? परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है इज एक्चुअली वैल्यू अगेंस्ट चेंज इन y. एंड जो बेस है, बेस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ चेंज इन x. x में चेंज होने के वजह से y में कितना चेंज हुआ, इसको हम बोल रहे हैं डेल्टा x, इसको बोल रहे हैं डेल्टा y. तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा चेंज इन y बाय चेंज इन x. चलो हो गया खत्म, और कुछ बचा नहीं आप बोलने के लिए. बात समझ में आया? तो आपको ये समझना है पहली बात, अगर स्लोप मतलब इंक्लिनेशन. जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा होगा, जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा. ठीक है. पर स्लोप का मतलब एक्चुअली होता क्या है? स्लोप मतलब होता है tan थीटा.
tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, चेंज इन वैल्यू अलोंग, चेंज इन वैल्यू अलोंग y एक्सिस बाय चेंज इन वैल्यू अलोंग x एक्सिस। ठीक है, देख लो क्या फिर से लिख दे रहा हम, स्लोप m होता है tan थीटा। यहां से हम लोग को समझ में आ गया कि मोर द एंगल मोर विल बी tan थीटा का वैल्यू एंड मोर विल बी द स्लोप। फाइन, फाइन। बट tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर मतलब चेंज इन वेरिएबल along y axis by change in variable along x axis। समझ में आया? तो ये हो गया आपका चेंज का सिंबल डेल्टा, y बाय चेंज इन x। ये हो गया स्लोप। ये है स्लोप का डेफिनेशन। और यहां पे अगर हम लोग एक सोल्यूशन दें, ये जो इक्वेशन, ये जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर, ये जो अगर इसको हम क्वेश्चन मान लें, तो आप बता सकते हो किसका स्लोप ज्यादा है। ऐसे बोल सकते हैं हम, सिंस थीटा वन, प्लीज सुन लो क्या बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, हाँ ठीक है। अगर इसको समझ गए, ये चमका डाला तो लाइफ जिंगा लाला। लुक ओवर है, एल्टिल ओवर है, यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो इस ग्राफ में थीटा वन इज मोर देन थीटा टू। अगर थीटा वन ज्यादा है मतलब tan थीटा वन का वैल्यू ज्यादा होगा कंपेयर टू tan थीटा टू। इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन वन इज मोर देन स्लोप ऑफ, उल्टा ही बोल दिया तुम, सॉरी 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 सॉरी, थीटा वन इज लेस देन थीटा टू, तो स्लोप ऑफ वन विल बी लेस देन स्लोप ऑफ टू। बस बात खत्म। ठीक है, एंड स्लोप का डेफिनेशन क्या होता है, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। बस इतना समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो फिर रिपीट कर लो इसको, ये समझना जरूरी है। ये चीज मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग। ओके, अब आते हैं हम लोग फिजिक्स में। फिजिक्स में आते हैं अब थोड़ा, लुको भैया, स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ, स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ। अगर हम लोग ओम्स लॉ का बात करते हैं, ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ कहा है कि फॉर अ गिवन कंडक्टर, for a given conductor V is directly proportional to I, that means V by I, V is, sorry, V is equals to some constant into I, and that means V by I is constant। जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे करंट को, पोटेंशियल ड्रॉप भी इंक्रीज करेगा, बट इट विल इंक्रीज लीनियरली, इट विल इंक्रीज लीनियरली। यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लीनियरली। लीनियरली मतलब स्ट्रेट लाइन, सेम अमाउंट से इंक्रीज करता रहेगा। आइए देखते हैं लोग, अगर आपके पास यहाँ पर ग्राफ है v वर्सेस i का, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, v वर्सेस i मतलब v अलोंग y एक्सिस, i अलोंग x एक्सिस। v i ग्राफ का मतलब होता है v अलोंग y, v अलोंग y एक्सिस, i अलोंग x एक्सिस। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर सुनो बात को पहले, इन दिस केस स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन y बाय चेंज इन x। what the question is, the question which we are dealing with, what will the slope represent, what will the slope represent, represent, this is what we are trying to discover, what will the slope represent। सुनो, if we are talking about vi graph, in that case slope means change in y by change in x, but what is change in y, change in y is change in potential by change in x, that means we have, sorry, change in I, that means we have something related to potential by I, and v by I represents, v by I क्या represent करता है, v by I represents resistance। इसका मतलब
इसका मतलब यहां से आपको ये समझना पड़ेगा कि द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस। ये चीज आपको याद कर लो या फिर यहां से आप निकाल सकते हो। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहां पर स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ। स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ। Now, if we talk about IV graph, इसका मतलब along x axis we have potential and along y axis we have current. And since we are talking about Ohm's law, it will be a straight line. So in this situation, the slope m by definition we know is change in y by change in x. What is which variable do we represent along y axis? Along y axis हम लोग कौन सा variable represent कर रहे हैं? Current. ये हो जाएगा change in current by change in potential. Change in current जो है एक्चुअली में क्या देगा आपको? करंट ही तो देगा। जो change in current है at the end of the day you will get a current only. Change in potential will give you potential only. Now V by I was resistance. I by V क्या होता है? सोचो सोचो। V by I was resistance. V by I was resistance. तो I by V को क्या नाम दिया गया है? Is called conductance. Is called conductance. That means slope represents conductance or which is actually equals to reciprocal of resistance. देखो समझ में आया कि नहीं आया? So आपको समझ ये याद रखना पड़ेगा कि the slope of I V graph represents conductance. Slope of I V I graph represents resistance, whereas slope of IV graph represents conductance. बस खत्म, इतना ही और कुछ नहीं। ठीक है, see either you can remember this or you can just do it on your own only. Hardly it will take 2 seconds. Fine, fine. चलो अब आते हैं मजेदार चीज पे। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। नाउ प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। ये 2007 में भी आया था, 2016 में भी आया था। Now look over here. Which of the following two conductors A or B have more resistance? Have more resistance. Fine, fine. देखो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए ना सबसे पहले देख लो कि ये जो ग्राफ है इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कौन सा ग्राफ है? Here we have which graph? We have VI ग्राफ। क्या है? VI ग्राफ। एंड हम लोग को पता है VI ग्राफ के लिए स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप M इज इक्विवेलेंट टू क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप M क्या रिप्रेजेंट करता है? V by I। स्लोप क्या होगा? चेंज इन Y। देखो सुनो शांति। स्लोप मतलब चेंज इन Y बाय चेंज इन X। चेंज इन Y बाय चेंज इन X। Y क्या है? पोटेंशियल। X क्या है? करंट। V by I। V by I क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। इन अदर वर्ड्स जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। समझ में आया? हो गया फिर। नाउ हेयर अगर देखा जाए ये A है ये B है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंगल फॉर A is more than angle for B. That means can I say slope of A is more than slope of ए राम क्या उल्टा पुल्टा तुम पढ़ा रहे बच्चा लोग को। सॉरी सॉरी। किसका एंगल ज्यादा है? ए का कि बी का? ये हो गया बी का, ये हो गया ए का। तो ऑब्वियसली एंगल फॉर बी इज मोर देन एंगल ऑफ ए। सो हम बोल सकते हैं थीटा ऑफ बी इज मोर देन थीटा ऑफ ए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन बी विल बी मोर देन स्लोप ऑफ लाइन ए, क्योंकि मोर द एंगल मोर द इंक्लिनेशन मोर इज द स्लोप। स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर? रेजिस्टेंस। स्लोप खुद व खुद रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। कैन वी नॉट से रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बी
is more than resistance of conductor A. Answer. खत्म, बस और क्या. So हम फिर से emphasize करेंगे. First, whenever you try to solve these kind of questions, first figure out what does the slope represents. First figure out what does the slope represents. Then accordingly solve this part. Take the angle into account. Once you know the angle, you can talk about slope, and then slope already you know what it represents. समझ में आया? Okay, let's move to the next. Okay, now we have a same question. Which of the following two conductors, which of the following two conductors, A or B, have more resistance? Have more resistance. Same question now, but just try to do it on your own. बट प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये अगर y है, ये अगर x है, यहाँ पर y के अलोंग I है, x के अलोंग v है. दिस इज द डिफरेंस. सोल्यूशन बहुत आसान है. Here we have what kind of graph? Here we have what kind of graph? IV graph. The moment you have IV graph, you can tell the slope m will represent what? Slope m क्या represent करेगा? This is a symbol equivalent to. I'm using the word for represent. Slope is equivalent to. इसका shorthand notation है, इसको बोलते हैं equivalent. क्या बोलते हैं? Equivalent. So the slope is equivalent to. Slope is equivalent to. अरे भैया IV ग्राफ है, change in y by change in x, मतलब I by v. I by v is not resistance but conductance. Conductance C. ठीक है, इतना समझ में आ गया हम लोग को. अब आ जाओ अगेन हेयर. अब देखो एंगल के बारे में सोचो. ये कंडक्टर ए है, मतलब ये हो गया एंगल मान लो थीटा ए. ये कंडक्टर बी, मान लेते एंगल थीटा बी. तो किसका एंगल ज्यादा है? थीटा ए इज मोर देन थीटा बी. इसका मतलब स्लोप ऑफ एंगल ए इज मोर देन स्लोप ऑफ एंगल बी, क्योंकि मोर द एंगल मोर इज द इंक्लिनेशन मोर इज द स्लोप. मोर द एंगल मोर द इंक्लिनेशन मोर इज द स्लोप. बात चमका चमका. Now slope of A is more than slope of B, पर slope क्या represent कर रहा है? Conductance. That means conductance of A is more than conductance of B. Conductance of A is more than conductance of B. But आपको resistance पूछा है, and we know the fact that resistance is reciprocal of conductance. That means conductance जितना ज्यादा होगा resistance उतना कम होगा. तो यहाँ पे समझो एक बार बात को कि if the conductance of A is more, that means resistance of A is less than resistance of B. बात समझ में आया? क्योंकि रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर कंडक्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा. सो दिस इज द आंसर. दिस इज द आंसर. रेजिस्टेंस ऑफ ए इज लेस देन रेजिस्टेंस. बात समझ में आया? ठीक है ना? बस. नाउ यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस ऑन योर ओन. आई विल नॉट सॉल्व नाउ एनीथिंग. अच्छा, एक चीज बाकी रह गया है, टाइप्स ऑफ रेजिस्टर. टाइप्स ऑफ रेजिस्टर. सुनो बात को, बहुत आसान सी बात है. सपोज यू हैव अ कंडक्टर. You have a conductor. Now, if the given conductor obeys Ohm's law. Achha, what is Ohm's law? What is Ohm's law? What is Ohm's law? Ohm's law says that, oh भाई साहब फिर से cancel. देख लो, what is Ohm's law? Ohm's law says that V is directly proportional to I. If I increase the potential difference, current will also increase, but linearly. Linearly. That means V is equals to some constant into I. That means V by I is equals to constant, and this constant is called resistance. And since we are talking about linearly, the graph of V versus I will be a straight line. This is all we have discussed. Now
a conductor which obeys Ohm's law, the conductor which obeys Ohm's law, conductor, लिख दो भाई, लिख दो, ठीक से लिख दो भाई, conductor which obeys Ohm's law are called ohmic resistor, are called ohmic resistor. एक ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ ओबे करता है उसको बोलते हैं ओमिक रेजिस्टर. एंड कंडक्टर, कंडक्टर, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला लग रहा है, विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक रेजिस्टर. बस बात खत्म. एंड द मोमेंट इट ओबेज, the moment is it obeys, I can also say that graph of vi will be a straight line, will be a straight line. जो iv ग्राफ होगा, vi ग्राफ जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा. स्ट्रेट लाइन होगा मतलब जो स्लोप है, iv ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस. तो इस कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट होगा. फाइन फाइन. बट यहां पर क्या होगा, बट हेयर जो हम लोग ग्राफ का बात करते हैं, जो ग्राफ है vi विल बी नॉट अ स्ट्रेट लाइन, नॉट अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो कैसा होगा? कुछ देखने में ऐसा होगा. vi कुछ ऐसा होगा. फाइन. दैट मीन्स यहां पे जो स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप क्या होता है? स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप कांस्टेंट होता है. स्लोप कांस्टेंट है मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है. बट ये क्या है? कर्व्ड है. कर्व्ड. if it is curved then slope is variable. Now if the slope is itself variable, that means resistance is variable. Resistance will change with time. is it fine or not? देख लो भैया, एक ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ ओबे करता है, इसका मतलब वो ओमिक रेजिस्टर है. ओम्स लॉ ओबे करने का मतलब क्या है? द vi ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. इफ द vi ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट मींस स्लोप इज कांस्टेंट, दैट मींस रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट. एंड यहाँ पे उल्टा उसका, बात खत्म. समझ में आया? और कुछ नहीं बोलना पे. यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा एक बार खुद से. इसमें से ये पॉइंट ज्यादा थोड़ा है, थर्ड पॉइंट को थोड़ा एम्फसाइज करके पढ़ लेना, बाकी सब आसान है. सेव this question, you do it on your own homework. Just keep the fact in mind that खुद से करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे इसमें. थोड़ा दिमाग चलाओ बस, कर पा रहे हो कि नहीं. ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, क्या बोला गया है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V वर्सेस I फॉर ओमिक रेजिस्टर. कर लोगे? For a find the resistance of a resistor from this graph. How can you find the resistance of a resistor from the graph? कैसा ग्राफ है? VI ग्राफ है. So if you find the slope, you can find the resistance. What is a non-ohmic resistor? The conductor which do not obey Ohm's law are called non-ohmic resistor. Fine. Please write the answers. Answers भी हम दे देंगे. But first you try on your own. Try on. Fine. This we have already discussed. हटाओ इसको. This question also you can do homework. Easy है, बहुत easy है. Which of the two conductor is ohmic? दोनों straight line है तो both are ohmic. Which conductor has more resistance? अरे ये तो कर लोगे आप लोग. Fine. Oh, the answer is also I have given. क्या बेवकूफ है हम. Fine, doesn't matter. What they have asked? Select the graph for ohmic and non-ohmic resistor. ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो ओमिक, वरना नॉन ओमिक. तो ये हो गया ओमिक, ये भी हो गया ओमिक, ये है नॉन ओमिक, ये है नॉन ओमिक, बिकॉज ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. बस खत्म.
नॉन ओमिक क्रॉस, ओमिक मतलब टिक। बात समझ में आया ना, और कुछ नहीं है फालतू। यहाँ क्या पूछा है, फॉर टू resistors identify the ohmic and non-ohmic resistor। अरे धूत, ohmic and this is non-ohmic। Why ohmic? Since the IV graph is straight line, since the IV graph is straight line, that means resistance is constant, and over here the IV graph is curved, that means slope is variable, that means resistance is variable। और ओम्स लॉ में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट होगा, V is directly proportional to I, एंड इस कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट को नाम दिया गया है रेजिस्टेंस। सॉरी, ठीक है, ठीक। और कुछ बचा नहीं बचा, उफ, ये हो गया, ये तो बता दी, हम लोग डिस्कस कर लिए, इसको हटाओ। ओह थैंक यू सो मच, खत्म हो गया। आज मेरे को बहुत ज्यादा टाइम ले लिया ना, बट स्टिल फाइन, इट्स वर्दी। सो प्लीज इसमें आप लोग समझ लेना, स्टार्टिंग में हम लोग क्या किया, वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट ओम्स लॉ, बेसिक रिकॉल किए। रेजिस्टेंस होता है V बाई आई, कंडक्टेंस होता है I बाई V, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है वो, एंड फिर क्वेश्चन सॉल्व करना उसके बस, और कुछ नहीं किया यहाँ पे हम लोग। फाइन, एंड वी स्टडीड अबाउट ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर्स, बस कहानी खत्म। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड।